Sir, good evening. Good evening. I think somebody's still joining in. Ismail, please. Hello. Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. Good evening, everybody. I think we'll have to wait for 5 more minutes before we can start. आवाज करना सर मीटिंग में आवाज बात करो सर आवाज करना मीटिंग चालू है We can just wait for 2-3 minutes before we start.
Hi, everybody. Good evening and welcome. Please give us another 2 minutes before we start. Thank you. सब आ रहे हैं धीरे धीरे. Hello, hello, everybody. Welcome today. Hello, ma'am. I think 2-3 मिनट और चाहिए before हम actually start कर सके because किसी हम wait कर रहे हैं किसी का. Okay, no, ma'am. You can take time. No issue. Okay, I think we can start. First of all, thank you everyone for joining us and a warm welcome to you all. Today we are here to have a little insight about to Rajesh Shah, artist Rajesh Shah's exhibition of small format abstracts. Jiska exhibition we have live on Gallery Pradashak from this morning. क्या आपने वो अभी तक विजिट किया है? If not, it's live on our website gallerypradashak.com and I will just put the link on the chat here so that y'all can just click and go to our exhibition. Just give me a minute. I hope link आप सबके पास आया हो. And this evening, today, we have veteran abstractionist artist Vilas Shinde, who is also the chairman of advisory committee at the National Gallery of Modern Art, Mumbai. Vilasji, as everybody knows, he tries to express his joyous preoccupation with nature. He is interested in color harmonies and focuses on individual tints that appear and reappear in soothing repetition, जो एक proper balance बनाता है उनके canvas पे. The images acquire different dimensions because of the tonal variations of his surrounding space. He has also won several awards and has exhibited his work in India and abroad. Before Vilas ji joins us today for a dialogue with Rajesh Shah, जिसके लिए हम आज आए हैं. Before that, what we can do is we can just run through
Rajesh Shah's journey from being a realistic painter to developing himself to being an abstractionist. Just give me a minute. I will share the screen to show you all artist Rajesh Shah's work. Just give me a minute. अभी जस्ट पता चला विलास जी अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं बिकॉज आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो रहा है बट होपफुली वी विल हैव हिम विथ अस वेरी सून बट तब तक वी कैन जस्ट शेयर राजेश शाह का राजेश शाह का वर्क फ्रॉम हाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एन रियलिस्टिक पेंटर टू बीइंग एन एब्स्ट्रैक्शन पेंटर just a minute. एक्चुअली जब तक ये लोड हो तब तक आई वुड लाइक टू नो कि एब्स्ट्रैक्शन आर्ट आप लोग के लिए क्या है मतलब मतलब आई एम श्योर यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनको पता है जिनको पसंद है एब्स्ट्रैक्शन आर्ट सो कैन वी लाइक हैव अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन about what abstraction art is and what do you think about it when you actually see a painting. You all can just unmute yourselves and like let's have a small conversation before I actually show Rajesh Shah's work. Anybody? Nobody? Hello, ma'am. Hi. Hi, ma'am. Nilesh here, Nilesh Mahadik. Ma'am, abstraction is only for our expression. That's it. और कुछ नहीं उसमें. Okay. But this is a one process are there. One process in your doing one work. When happening, you express your on papers, on canvas, anything, any media. It's not an issue that. But how to express 100% is very important. That with purity your work. That's it. I have the same feeling. मैं जब एक abstraction work देखती हूँ, I have the same feeling. But anybody Yeah, else thank who you, ma'am. would like to share their thoughts? I think a lot of us are having network issues और ये आज ही होना था. विलास जी अभी तक हमारे साथ आ नहीं पाए हैं बिकॉज उनका नेटवर्क इशू हो रहा है अभी जस्ट मुझे पता चला. But anybody who would like to share their thoughts? Nobody? Oops. Okay, just आज तो लगता है मेरा भी नेटवर्क नहीं हो रहा है. Just give me a minute. जब एक्चुअली चाहिए होता है तब कभी नहीं चलता.
I always wonder whether we work for the system or the system works for us. I agree to that. I mean, when you want the system to work for us, we seem to be more for the system. How many of you agree with me on that? I totally agree to you. I've been You struggling. can raise your hands. Definitely. I don't know how to raise the hand. I guess raise my hand for another. But you can always speak. I mean, this platform gives us a chance for everybody to switch on their mics and speak when they want to. But yeah, I would like to ask you, what is your thoughts of an abstraction painting? You asking me Yes. or a generic question? I'm asking you. Every painting to me is a language by itself. Every artist has his own vocabulary. What is inside the painting is really comes in later, only if you can read it or you can hear it more than you can see it. Again, a thought. I don't know. Guys, do you agree? Disagree? Just click on it. Give me a thumbs up or a thumbs down on this thought. I let's just have, before we have Vilas ji with us, let's just have a look at what Rajesh Shah's work. Let's just have a look at that. Oh, that is something. Wow, that was something. What do you guys think about this? Please drop in your comments. We'd love to know your
views as well. I think we have Rajesh ji with us. Sorry, Vilas ji with us. Just let's see whether we have him with us now. Yes, we have Vilas ji with us. Vilas ji, thank you so much for joining us today. A warm welcome to you. Thank you. Connection is unstable. I think all of us are facing that issue today. Yeah, okay. Yeah. Can we invite Vilas ji and Rajesh ji to have a small conversation? So, Vilas ji and Rajesh ji, the stage is all yours. Can we have you guys? We should start now. Yes, please. Hello, sir. Yeah. Yes. Namaste, Rajesh ji. Now, नमस्कार सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। तो आप जो पूना में रहते हो, तो पूना ये काफी लिटरेचर में या आर्ट में या आपके डांस में, म्यूजिक में, लिटरेचर में बहुत सारा आपका पूना इतना फेमस है। और पूना जो सराउंडेड बाय सह्याद्री, आपके पास नेचर भी बहुत कुछ है और आप एक्चुअल नेचर में रहते हो, तो वो जो आपको जो नेचर से इंस्पिरेशन जो मिलता है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रीशियस गिफ्ट जैसा है। तो ये जो आप नेचर जब भी जाते हो, आप नेचर को जब नजदीक से देखते हो, तो आपको कैसा फील होता है? आप नेचर को देख कुछ फील भी करते हो, तो वो फील क्या करते हो? कैसा आपको लगता है नेचर में जब जाते हो? हाँ, नेचर में हम जब जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो ईश्वर ने हमारे को जो 5 तत्व दिए है, जो भी नेचर दिया है, वो सब अब्स्ट्रैक्ट ही है। अब्स्ट्रैक्ट उसी से एक्सप्रेशन भी मुझे मिला है, वो अब्स्ट्रैक्ट है, उसको अंदर तक फील करने की कोशिश करते हैं। जो ठंडी हवा है, जो भी ग्रीनरी है, ये हमारा अंदर तक महसूस हो, उसको महसूस कर पाए अंदर तक। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम गए और आ गए, हम वहीं पे रहते हैं। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं ऐसा घूमने के हिसाब से नहीं जाता, तो एक ही जगह पे कुछ दिन रहता हूँ, जिससे कि मैं उसको फील कर सकूं, उस वातावरण को फील सकूं, उस मौसम को फील कर सकूं, उस सब चीजों को फील कर सकूं। मैं ऐसा काफी जगह नहीं घूमता, एक ही जगह जाके हफ्ता रह के वहीं रहता हूँ और उसको फील करता हूँ बहुत अच्छे से अंदर तक डीपली, कि उसका क्या महसूसता होती है हमारे अंदर तक, आत्मा तक, उसको क्या हम महसूस कर पाते हैं, जिससे कि हमारे को उससे आगे जब हम काम करते हैं तो हमारे को उसी का बेनिफिट काम करने में मिलता है। तो जब ये अब कोई चीज को महसूस करते हो, जैसे आपने वो बर्ड्स का घोंसला के बारे में बताया था, जब वो देखने के बाद आप महसूस जब करते हो, तब वो घोंसला जब पेंटिंग करने के लिए जाते हो कैनवास के ऊपर, तो वो घोंसला जो है एज इट इज रहता है, वो पूरा उसका खाली फीलिंग रहता है कि घोंसले का जो फीलिंग है देखने के बाद जो आपको फील होता है, वो फील रहता है या घोंसला भी साथ में रहता है? नहीं, घोंसला नहीं रहता, सिर्फ फीलिंग रखता हूँ मैं, सिर्फ फील अपने साथ रखता हूँ, उस चीज को देता हूँ, सिर्फ उसके अंदर का जो इंस्पिरेशन है वो ले लेता हूँ, उसके अंदर की जो चीजें, उसके अंदर जो चीजें है जो मुझे अच्छी लगती है उतना ले लेता हूँ और अंदर तक फील कर लेता हूँ। बाकी वो जो मटेरियल है, मटेरियल को बाजू में कर देता हूँ, मटेरियल को साथ में नहीं रहता हूँ। इसलिए पेंटिंग में आप घोंसला नहीं दिखाई देता, पर घोंसले से आई हुई लाइंस दिखाई देंगी, घोंसले से आई हुई लाइन दिखाई देंगी, उसमें की वो एयर्स जो अंदर आने जाने की जो एयर रहती है घोंसले के अंदर, जो जगह रखते पक्षी लोग, वो दिखाई देंगे, तो वो दिखाई देते हैं, लेकिन घोंसला नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तो ये जो घोंसला, जो एक्चुअल घोंसला ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वो खाली आपके मन में फीलिंग रहता है घोंसले के फीलिंग बारे रखता हूँ में। मैं, हाँ, तो वो लाइनों की फीलिंग रखता हूँ मैं, कि जो घोंसला बनाते समय जो काड़े का यूज करते पक्षी, उसकी जो लाइंस रहती है, वो लाइंस मेरे अंदर आ जाती है कि लाइंस किस तरह एक दूसरे में अंदर बाहर गुफी हुई है, उनको मैं अपने साथ लेके आता हूँ
और उसके अंदर से जो अंदर का फील होता है कि अंदर हवा है घोंसले के अंदर, बाहर भी, और अंदर तक जो फील होता है वो फील लेके आता है, जो कि मैं पेंटिंग में दिखा सकूं। तो वो घोंसले के ऊपर जो सराउंडिंग्स है आजू बाजू का, तो घोंसले के साथ वो सराउंडिंग आजू बाजू वाला होता है, उसका कुछ परिणाम होता है कि नहीं आपके मन में? होता, सराउंडिंग का तो होता है, पर इतना मैं जिस चीज पे कंसंट्रेशन होता है उसी को फील करता हूँ। पूरा के पूरा एक साथ हम मैं फील करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ज्यादा हम फील करने की कोशिश में जो मेन चीज रहती है वो छूट जाती है कई बार। तो उसी पे फोकस रहता है कि यही मैं फील कर पाऊँ अच्छे से, कि जैसा कि भूख है तो भूख को ही महसूस कर पाऊँ, बाकी चारों चीज जगहों को हम फील करेंगे तो वो चीज बाजू में हो जाएंगी, भूख बाजू में रह जाएंगी। क्योंकि जब ये पंछी अपना घोंसला बनाता है, वो ऐसी जगह पे बनाता है कि जहाँ पे उसको खाने का या फूड जो है इजीली अवेलेबल होता है, वैसे जगह पे ही वो बनाता है घोंसला। सही बात। और ऐसे जगह पे बनाता है कि जो आदमी इजीली उनको टच नहीं कर सकता है सही। या उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ऐसे जगह पे वो घोंसला बराबर। बनाता है। तो जो और वो पूरे हेवी बारिश के टाइम पे नहीं बनाता है, वो थोड़ा धूप होता है, जैसे श्रावण महीना होता है, या हम मराठी में बोलते हैं श्रावण, यस आप हिंदी में भी यस बोलते यस। होगे उसको श्रावण। हाँ, श्रावण का तो महीना, उसी बराबर। तो जो उसी हल्की टाइम पे वो, बूंदाबांदी होती है। हाँ, तो हल्की सी बूंदाबांदी होती है, धूप होती है। एक कविता है, आपको मराठी में कुछ पढ़ाई किया है पुणे में मराठी में? स्कूलिंग किस में, मराठी में हुआ या हिंदी मेरा में? स्कूल हिंदी में हुआ है 10 तक, फिर 12 करने के बाद इधर मैं आर्ट फील्ड में आ गया, तो सब हिंदी में पढ़ाई हुई है मेरी, और ऐसा मैं तो मराठी एक, बोलता हूँ। अच्छा, तो एक आपको एक दो लाइनें सुनाता हूँ। मैं बाल कवि ने एक लिखा है, श्रावण महीने के ऊपर एक कविता अच्छा। लिखी है। हाँ श्रावणची हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात हाँ येते सत्तर शिरवे, क्षणात फिरूनी ऊन पडे। ये जो बराबर। श्रावण महीने का उन्होंने जो एक वर्णन जो किया है, इतना ब्यूटीफुल किया है कि सही है, श्रावण महीने में पूरे हरियाली दिखता है बहुत आजू ही बाजू में। सुंदर। हाँ, तो उसी यस। हरियाली में घास भी बड़े बड़े घास हो जाते हैं, तो वो घोंसला बनाने के लिए वो पंछी घास के धागे निकाल के वो अपना घोंसला बनाता है। ये इतना बराबर। एटमॉस्फेयर सुंदर हो जाता है कि आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा गिफ्ट हो जाता है। तो गिफ्ट है वो। आर्टिस्ट इससे बहुत इंस्पायर होता है, और वो अपने मन के अंदर जो फीलिंग्स है, हाँ फीलिंग्स कैनवास के ऊपर उतरना शुरू करता है। सही। तो ऐसा आपको कोई एक्सपीरियंस है ही क्या नेचर के बारे में, कि आप रियली वो नेचर को देख के आप पूरा मूव हो गए होंगे या हिल गए होंगे, और आपको बड़ा अच्छा आनंद मिला होगा उससे? ऐसा कोई मोमेंट है क्या? नेचर का भी है, पर मैं कई बार दूसरी कोई चीजें भी सोचता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जब मैं बनाता हूँ तो कुछ मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो हमारे घर की माता है जो रंगोली बनाती है घर के बाहर, वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती है, पर उसके अंदर का जो मिठास होती है कि वो रंगोली देख के पता चल जाता है कि आज इनके यहाँ कुछ तो शुभ कार्य है या कुछ ऐसा है। उनके जो रंग रहते हैं वो रंग इतने चटकीले रहते हैं कि यदि हम वो रंगोली बनाए तो हमारे रंगोली में उतना मजा नहीं आता है जो उनकी रंगोली में आता है। ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है ये चीजें, कि जिनको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में ऐसे शब्दों में पता नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कई किसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और हम उसको महसूस भी कर पाते हैं, कि सुबह उठते हैं और पानी का वो डालते, पानी डालते हैं, और वहां पे जो गिरी जमीन पे ऐसी रंगोली बनाते हैं, वो पता चल जाता है कि सुबह हुई और एक खुशहाली का मौसम है और बहुत खुशी में कोई रंगोली बनाई या कोई त्योहार है। तो वो जो एक्सप्रेशन देता है मुझे, उसी से मुझे एब्स्ट्रैक्ट की ज्यादा कल्पना सूझती है कि ये जो मजा है ये हम हमारे पेंटिंग में क्यों नहीं ला पाते। ये मुझे बहुत अंदर तक जाता है ये मुझे चीज। वही पेंटिंग जो है, ये आपका खुद का एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ, यानी आपका जो खुद का एक्सप्रेशन है, ये पूरा अंदर से आया हुआ एक्सप्रेशन है। ये
ट्रू एक्सपीरियंस या जो नेचर में आपको सही में जो एक्सपीरियंस आता है हाँ। उसी के हाँ। मन में हमेशा, और आप इनर फीलिंग जो है आपका या इनर वॉइस हाँ। जो है आपका पेंटिंग के द्वारा बाहर निकल आ जाता है। तो और जब भी आप नेचर में रहते हो या आप जितने इतने सारे कलर्स देखते हो तो उसमें से सभी कलर आपके पेंटिंग में आ जाते हैं या नहीं, सभी कलर आ जाते हैं हम ऐसा तो नहीं कहेंगे। क्या होता है कि हम जो एक्सप्रेशन लेते हैं, जो नेचर से बोलो या हमारे सराउंडिंग से जो हमारे को मिलता है, वो हमारे अंतर्मन में तो आ जाता है। और हमने जो एजुकेशन लिया होता है, जो एजुकेशन से हमारे पास ज्ञान आ जाता है, उस ज्ञान और इसका जो मिलाप हो जाता है, उससे जो कलर निकल के आते हैं वो अलग ही होते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट वो भी नहीं लेते, और जो ज्ञान आया है उससे भी कुछ होता है, क्योंकि हमने जो टेक्निकल चीज पढ़ी है, जो इस कलर स्कीम, वो इतने अंदर तक चली गई कि वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये कलर लेना है वो लेना है। वो ऑटोमेटिक जब पेपर सामने आता है, एक कलर लेता है तो वो कलर ही दूसरा कलर का मांगता है कि ये कलर आप लगाओ, तो हम वैसा कलर लगाते हैं तो वो होते जाता है। वो ऐसा सोचना नहीं पड़ता है यही कलर लगाना है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेपर आता है, एक कलर जब ब्रश में आ जाता है तो दूसरा कलर उसके ऑटोमेटिक आते जाता है। ये कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ कि ये कलर लेना है मुझे, सिर्फ एक कलर लेता हूँ और उससे ऑटोमेटिक दूसरे कलर होते जाते हैं और पेंटिंग बनते जाता है आगे। तो जो पेंटिंग के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं पब्लिक के साथ या सोसाइटी के साथ, जो कम्युनिकेशन, हाँ, लोग वर्ड्स में कम्युनिकेशन करते हैं, वो जो जैसे नेचर देखते हैं तो वो कविता लिखते हैं या कोई एक स्टोरी लिखते हैं, तो नेचर के बारे में वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। हम फॉर्म में और कलर में एक्सप्लेन करते हैं, या जो आपको फील हुआ है वो लोगों के तक पहुंचाते हैं। तो आपको कलर्स और फॉर्म ज्यादा इजी लगता है या शब्दों में लोगों के पास समझाने में ज्यादा इजी लगता है? आपको दोनों में से कौन सा इजी लगता है? नहीं, कलर में इजी लगता है, क्योंकि उतना शब्दों का ज्ञान मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे पास है कि जो हम प्रेजेंट करें। यदि शब्दों का ज्ञान होता तो पेंटिंग नहीं करते थे, कवि बन जाते थे। इसलिए कलर का ज्ञान आया है, इसलिए वो करते। पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग पूछते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से देखा जाए। मुझे कई लोगों ने पूछा कि एब्स्ट्रैक्ट मैंने कुछ पेंटिंग बनाई, तो कई लोगों ने पूछा इसको देखना कैसा, ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने उनसे एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप जब भीमसेन जोशी जी का जब गाना सुनते हो तो वो आलाप लेते हैं बीच में करके, जो आलाप लेता है, ये आलाप हमारे को समझ में आता है क्या? तो बोले नहीं, पर वो आलाप अच्छा तो लगता है। उसी प्रकार मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी देखा करो कि जो आलाप है वही आलाप हम पेंटिंग में उतारे, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में। उसमें कोई फॉर्म नहीं है, कोई शब्द नहीं होते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते। जिस तरह आलाप को महसूस करते उस तरह एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को भी महसूस कर सकते। तो जब नेचर में जाते हो या once you go to the nature, you look at the river, you look at the mountain, you look at the tree. आप ट्री को देखते हैं, रिवर को देखते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं। हाँ। तो आप जब ये सब चीजें देखते हैं तो रिवर, it remains just river, or it is something beyond? हेलो हेलो, आई थिंक विलास जी का नेटवर्क का इशू है। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम बैक, जस्ट 2 minutes। जब तक विलास जी आए, राजेश, विलास जी ये पूछ रहे थे कि तुम जो चीज जैसे देखते हो वो वैसे ही निकालते हो कि उससे और आगे चले जाते हो और बढ़कर वो नहीं, हाँ समझ गया मैं। नहीं, जब नेचर में हम जाते हैं तो उसको कहते संजो के रख लेते, वो चीज उसी के जैसे ही हम बनाने की कोशिश ही नहीं करते, पर तो संजो जाती है। कि जैसे कि पानी की जो लहरें हमारे तरफ आ रही है, समुद्र की लहरें हमारे तरफ आ रही है, तो जो लाइंस रहती है वो सिर्फ लाइंस को कहीं तो दिमाग में रहती है, और जब पेंटिंग बनाते हैं तो ऑटोमेटिक वो नाइफ से कहते लाइन बन जाती है। कई बार हमें पता नहीं चलता है, और जब हम देखते तो हमें ध्यान में आता है, कई बार हम भी भूल जाते हैं कि उसी में से ये चीज आई है। कई बार पेंटिंग बनाने के बाद में ध्यान आता है कि हमारे लाइफ में ये चीज हुई थी और ऐसा हमने देखा था, और वो हमारी पेंटिंग में ऑटोमेटिक आ गई है।
अब्स्ट्रैक्ट का यही मजा है कि हम कई बार जो सोचते नहीं वो भी हमारे इसमें आ जाता है, लेकिन कई बार हम उसको बैठ के शांति से देखते तो हमें पता चलता है कि ये कहाँ से आई है। उस समय हम समझ नहीं पाते कहाँ से आई है। एक और चीज तुम्हारे काम में नोटिस किया है कि छोटी छोटी लाइनें बहुत रहती हैं। कभी लंबी लाइन रहती है, लेकिन मोस्टली छोटी छोटी लाइन बहुत खुश रहती है। तो कोई ऐसी मीनिंग है तुम्हारे काम की जो छोटी लाइंस की, मतलब हर एक काम में है? हाँ, उस बारे में अब मतलब जो सच बात तो ऐसा है कि इंसान जैसा स्ट्रगल करते जाता है, ऐसा बोला जाता है क्या, क्योंकि मुझे फिलोसॉफिकली किताबें वैसे पढ़ने का काफी शौक है, और ये तो ऐसा बोला जाता है कि आप जो स्ट्रगल करते हो लाइफ में, वो स्ट्रगल आपकी छोटी छोटी लाइन कई बार दिखाती है कि आप बार बार वो लाइन दिखाते हो, वो ऑटोमेटिक आते रहती है। मुझे जानबूझ के नहीं बनाता हूँ, लेकिन आती जब तक वो लगाता नहीं, जब तक अब ऐसा लगता नहीं पेंटिंग पूरा हो रहा है। हाथ की लकीरें देख के कोई बोलता है ना, जो छोटी छोटी लाइनें रहती है, हाँ तो that means हाँ, you तो have वैसे हाँ, तो स्ट्रगल ऐसा बोलते हैं, स्ट्रगल दर्शाता है वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दर्शाता है। तो ऑटोमेटिक कई चीजें ऐसा होती है कि ऑटोमेटिक आते आते हम समझ ही नहीं पाते। मतलब जब मैं पहले था तो मैं सोचता था कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाना है, पर मैं एक्सप्रेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हाथ में मैं कलर लेके कब ऐसा कैनवास पर रंग लगा के, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा तो पेंटिंग बन नहीं सकता। मैं शुरू में जब सोचता था, पर आज लगता है कि किसी भी तरीके से पेंटिंग बन सकता है। वहां तक आज हमारे विचार पहुंच गए, हम किसी भी तरीके से पेंटिंग बना सकते हैं। मतलब पेंटिंग की ऐसी बाउंड्री नहीं है कहीं। जब रियलिस्टिक काम करते थे तो एक तुम्हारे काम का ये खास ये था कि फिगर्स काफी बड़े होते थे। ऐसे लग रहा था कि कैनवस से उठ के उभर के कैनवस के बाहर निकल रहे हैं फिगर्स। काफी काफी समय ऐसा बोल्ड लेता था मैं। बोल्ड फिगर्स थे, बोल्ड which फिगर were out of, they were extending out of the canvas। लेकिन यहाँ जो छोटे फॉर्मेट की पेंटिंग्स बनी है, वो एक सीमा दिख रही है उसमें। हमेशा पेपर पे एक सीमा है, इट डज नॉट क्रॉस द बॉर्डर। एक बॉर्डर रहता है काम में। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं, इसमें बॉर्डर का तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक्चुअली एकदम सीमित है। फ्री होके काम करता हूँ। हाँ, फ्री होके कर रहे हो, लेकिन एक फ्री दायरा होके है, करने की कोशिश एक दायरा नहीं बना क्या हुआ है पेपर पे, जो कैनवस पे नहीं दिख। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कैनवस दायरा मतलब वो है, वो छोटा ही आकार होने के कारण ऐसा लगता है। जब ये यही पेंटिंग जब हाँ कॉन्शियस अनकॉन्शियस है। सेलिब्रेट करके नहीं सोच ऐसा कोई समझ के सोच के कोई नहीं है, बात कोई नहीं है। सोच के नहीं, कोई सोच के नहीं। आई थिंक वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। विलास जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ही हैड अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट यू। मैंने जो देखा है राजेश, तुमने 2018 से एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया है, और 2018 से अब तक भी काफी चेंजेस आए हैं एक्सप्रेशन में। एब्स्ट्रैक्ट के एक्सप्रेशन में ही चेंजेस आए हैं। तो आगे क्या कुछ सोचा है? आगे कैसे करना है? क्या करने वाले हो? बड़ा काम करने वाले हो? कैनवस पे करने वाले हो बड़ा? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब एब्स्ट्रैक्ट 18 में स्टार्ट करा, पर मैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए 13 से सोचना चालू कर दिया था कि मुझे कुछ तो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है फिगर में कहीं हम बन जाते हैं, वही फिगर होती है, वही चेहरे होते हैं, उस चेहरे से हम बाहर ही निकल नहीं पाते। कई बार वो वही चेहरे ऐसा लगता है कि हम इधर से उधर घुमा रहे। तो मैं बोला इसमें से कुछ बाहर निकलना चाहिए, कुछ फ्री होके काम करना चाहिए, जो कि ऐसा मजा एकदम ऐसा उछल कूद के हम काम कर सके। फिगर में वैसा नहीं होता कि हम उछल कूद के काम कर सके। तो धीरे धीरे करते उसको 4-5 साल मुझे सिर्फ थिंकिंग में लग गए कि मुझे क्या करना है। और फिर जब मैंने स्टार्ट करा 18 से मेरा पहले स्टार्ट हुआ, और अब स्टार्ट हो रहा है। अब मैं बड़े पेंटिंग अभी शायद 1-2 महीने में चालू कर दूंगा। बड़े कैनवासों पे 4x4 या 5x5 से बड़े पेंटिंग अब चालू करने हैं मुझे, क्योंकि जो उसका जो पीरियड था वो हो गया है। जो मतलब जो रियाज बोलते हैं या फिर जो काफी काम करके जो मजा लेना रहता है वो हो गया। बड़े इसमें मजा लेना है इसका। अच्छा, अभी अभी मैसेज आया, विलास जी वापस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आई थिंक हैड अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन राजेश। तुम्हारी बड़ी पेंटिंग्स देखने के लिए वी आर वेरी ईगर, क्योंकि छोटी पेंटिंग्स में ही इतनी एनर्जी है। तो मैं सोचती हूँ कि बड़ी में और एनर्जी आएगी, जिस तरह से मैंने तुम्हारा काम देखा हुआ है लास्ट कितने सालों से। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब हम लोग एक छोटा सा डेमो देखेंगे जो राजेश जी ने रिकॉर्ड किया है।
कि वो अपना एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जब करते हैं तो कैसे बच्चे की तरह बिल्कुल उसमें उलझ नहीं जाते लेकिन एंजॉय करते हैं. Let us have the video. Let us see how he demonstrates. Yes, I'll do that. I think I shared a wrong video. Just give me a minute. I'll just share the right video with you. Just bear with me. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते समय मैं फ्री होकर सहज होकर काम करता हूँ. मुझे एक प्रकार का फ्रीडम महसूस होता है. मैं उसके साथ एंजॉय करता हूँ, एनर्जी के साथ फोर्सफुली काम करता हूँ. मैं पेंटिंग में हर प्रकार के रंगों का उपयोग करता हूँ. कभी तेजस्वी, कभी ग्रे, कभी मिश्रित रंगों का उपयोग करता हूँ. पेपर मुझसे जो मांगता है मैं उसे वो देता हूँ.
मैं कभी नाइफ से, तो कभी हाथों से, तो कभी रोलर से रंग लेपन करता हूँ। तो कभी रंगों के छींटे मारता हूँ। यह सब करते समय बचपन जीने का अनुभव होता है। मैं बचपन में रंग को हथेली पर लगाया करता, दीवालों पर लकीरें खींचा करता, शाही पानी फेंक कर खेला करता। यही सब मैं आज अपनी पेंटिंग में करता हूँ। हर बच्चे में एक कलाकार होता है। बड़े होते होते वो खो जाता है, बस उसे ही ढूंढने की एक कोशिश है। That was very good. Really nice. I'll give it over to Urmil. Yes, definitely. I think that was indeed a very engrossing demonstration that we've seen. Thank you so much, Rajesh ji. And we had a beautiful conversation between Rajesh ji and Vilas ji, but unfortunately we lost Vilas ji in between, and Savita ma'am took it up. It was a very beautiful and engrossing conversation. This evening has come to an end, but the show continues. Our exhibition is live from today until the 22nd on our website, gallerypradarshak.com. And if y'all, I can also share the link in the chat, and y'all can just click on that and view our exhibition, the Rajesh Shah's exhibition, small format abstracts. Thank you so much. Thank you so much for being a great audience. Savita ma'am, would you like to say something? Yeah, thank you very much, all of you, for joining us. We're going to bring you some more interesting conversations, more interesting exhibitions online. So stay tuned. We'll keep you updated. It would be nice if you can follow us on Facebook, Instagram. Our handles are Gallery Pradarshak, and that will keep you totally updated with all the different activities that we do. Thank you once again. Have a lovely evening. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Rajesh ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rajesh ji. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you all for coming. Thank you so much. Yeah, okay. Thank you, sir. Thank you, everyone.